اسلام میں عورت کو کتے کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے۔ فوکس، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ان کی اپنی کتاب میں درج ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 950 میں صاف لکھا ہے کہ 3 چیزیں نمازی کے سامنے سے گزرنے پر اس کی نماز کو خراب کرتی ہیں، ایک عورت، ایک کتا اور ایک گدھا۔ حد ہے۔ Hey, what is this? This is very strange. یعنی اگر ایک عورت، کتا اور گدھا سامنے سے نکل جائے تو مسلمانوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ بیوقوف ہے کیا؟ What does it mean? اور یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ پروفٹ محمد کے خاص صحابیوں میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ یہی ہے اسلام میں مائی فرینڈز، جو عورت کو کتے اور گدھے سے کمپیئر کرتا ہے۔ کیا ہم اس سچائی سے اپنی آنکھیں چرا سکتے ہیں؟ Absolutely not. میں حیران ہوں۔ حد ہے، یہ لوگ بیوقوف ہے کیا؟ May God give these people some sense. آئیے مل کر ان سب کے لیے پرارتھنا کریں۔ ہے یشوع مسیح، ان سب کو اپنی شرن میں لے جو اس اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ ہے یشوع مسیح، انہیں اندھیرے سے پادری صاحب، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کھڑے ہو کر کہیے، پلیز کھڑے ہو جائیں۔ ہم لوگ اندھیرے میں نہیں ہیں، بلکہ اندھیرے میں وہ لوگ بھٹکتے ہیں جن کے پاس آدھا ادھورا گیان ہوتا ہے۔ Who is this? And how is he talking to the priest? میں خود کنفیوز ہوں، کوئی نکالو اس کو یہاں سے۔ آپ کرسچن نہیں لگتے ہیں، آپ کی تعریف؟ تعریف اس خدا کی جس نے مجھے بنایا۔ میں ہوں ایک مسلمان، محمد مکتوب احمد۔ میرے مسلمان بھائی، تو کیا آپ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی اس حدیث پر روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ بالکل پادری صاحب۔ پادری صاحب، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو 1400 سال پہلے مدینہ میں جانا ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ خلافت کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اسلامک ایمپائر خلیفاؤں کی نگرانی میں تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہر گھر میں، ہر محفل میں صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ کس طرح اسلام کو پھیلایا جائے، اسے محفوظ رکھا جائے، اور اسی کے چلتے ہر صحابی اور صحابیہ اپنی طاقت اور ٹیلنٹ کے حساب سے اسلام کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ جسم سے مضبوط صحابہ الگ الگ شہروں اور ملکوں تک اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ دوسری طرف قرآن کے حفاظ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہوا تھا، وہ اللہ کے کلام کو لوگوں کے دلوں میں محفوظ کروا رہے تھے، انہیں قرآن یاد کروا رہے تھے تاکہ قرآن اور سنت کا ایک ایک لفظ لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہو سکے۔ اور اسی عظیم مشن میں عورتیں کسی سے پیچھے نہ تھیں۔ کچھ عورتیں تھیں جو مسلمانوں کی خدمت میں لگی ہوئی تھیں، کچھ بچوں کی تربیت کر رہی تھیں، تو نہ جانے کتنی ہی عورتیں مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اور اللہ کا دین سکھا رہی تھیں۔ تو جیسا میں نے بتایا، یہ حدیث قولی ہے، حدیث قدسی نہیں، ٹھیک؟ حدیث قولی یعنی نبی پاک کا سیدھا فرمان۔ بہت خوب۔ اور اس دور کی سب سے بڑی محدث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کا درجہ صرف نبی کی بیوی کا نہیں ہے، بلکہ آپ بہت بڑی فقیہہ تھیں۔ حضرت عائشہ نے اکیلے 2200 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ آپ کے دروازے پہ علم حاصل کرنے کے لیے لے آتے تھے۔ یا ام المومنین، شادی کا اصلی سکون کیا ہے؟ ہماری ساری زندگی نکل گئی مگر آج تک شادی کا اصلی سکون سمجھ نہیں پائے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو اصلی سکون اسی میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں اور عیب پر پردہ ڈالیں۔ اور جب کوئی صحابی کسی حدیث کو ادھورا سمجھتا یا غلط کانٹیکسٹ میں اسے کوٹ کرتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسے کریکٹ کرتی، کبھی نرمی سے تو کبھی سختی سے۔ علم کی دنیا میں جب ایک صحابی دوسرے صحابی کو کریکٹ کرتے ہیں تو اسے استدراک کہا جاتا ہے۔ اور پادری صاحب، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسلامک کلچر ایک عورت کا آدمی کو کریکٹ کرنا اتنا نارمل ہے، اتنا نارمل ہے کہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ ریلیجن تو بڑا لبرل ہے۔ مس پلیز۔
जिनमें सबसे मशहूर किताब है अल इजाबा, जिसे लिखा है इमाम ज़रक़शी ने। हजरत आयशा ने जितनी भी हदीसों को करेक्ट किया है वो सब इस किताब में मौजूद हैं। हजरत आयशा की अंडरस्टैंडिंग का अंदाजा आप इस वाक़े से लगा सकते हैं कि एक रोज हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को किसी ने इन्फॉर्म किया। ए उम्मुल मोमिनीन, आपने सुना? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि औरत गधे और कुत्ते के सामने से गुजरने से नमाजी की नमाज खराब हो जाती है। आयशा कहती हैं कि इन लोगों ने तो हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया। और तो और आयशा ने खुद ने इसकी दलील भी दी कि जब नबी पाक नमाज पढ़ते थे तो आयशा आपके सामने लेटी होती थी और जब आयशा को उठना होता तो वो आहिस्ता से खिसक जाती थीं। यानी आयशा नमाज के दौरान नबी पाक और किबले के दरमियान होती थी। जी बिल्कुल ऐसा ही कहा आयशा ने। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो बहस ही खत्म हो गई। आप कह रहे हैं कि हजरत आयशा की इस गवाही ने पूरी बहस ही खत्म कर दी? बिल्कुल पादरी साहब, क्योंकि अगर औरत के सामने होने से नमाज टूटती है तो फिर नबी पाक की नमाज हर रात किस तरह होती रही। और इस गवाही का वजन इतना ज्यादा था कि इस्लाम के 4 मशहूर इमामों में से 3 अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम शाफी, तीनों ने फैसला दिया कि सामने से गुजरने पर लीगली नमाज नहीं टूटती। सिर्फ इमाम अहमद के अकॉर्डिंग अगर काला कुत्ता नमाजी के सामने से गुजर जाए तो नमाजी की नमाज टूट जाती है, लेकिन औरत के बारे में सबका एक ही जवाब है कि नमाज नहीं टूटती है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या फिर मिस्टर मकतूब, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू फादर। तो जैसा मैं कह रहा था कि सवाल ये है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या वो गलत थे? बिल्कुल नहीं। असल में मसला यहाँ पर हदीस का नहीं है। तो फिर मसला है किस चीज का मिस्टर मकतूब? बिल्कुल, आखिर ऐसा कहा ही क्यों? आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। मसला कॉन्टेक्स्ट का है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तब किस कॉन्टेक्स्ट में कही, और इसको समझने के लिए आपको अरेबिया का वो दौर देखना होगा जब नमाज खुले मैदानों में होती थी। ये वो वक्त था जब मस्जिदों में आज जैसी दीवारें नहीं थी, बल्कि नमाजी खुले मैदान में खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे और उनकी नजर खुले मैदान में दूर दूर तक जाती थी। अब सामने से कोई भी गुजरे, मर्द हो, औरत हो, कुत्ता हो, गधा हो, ऊंट हो, इंसान का दिमाग किसी चीज के गुजरने से, सामने आने से भटक ही जाता है और जिससे नमाज के अंदर खलल पैदा होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। और इसी भटकी हुई नजर को बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। सुतरा, यानी अपने सजदे की जगह से थोड़ा आगे किसी चीज को रख दो, एक ऐसी चीज जो आपके विजन को लॉक कर दे, जो आपकी नजर को दूर तक जाने न दे। असल में सुतरा एक एंकर की तरह काम करता है जो नमाजी के फोकस को लॉक करता है, और आसपास से गुजरने वाले लोगों के लिए भी सुतरा एक वार्निंग की तरह काम करता है जो लोगों को बताता है कि भाई यहाँ पर एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चल रही है, ये बंदा अपने रब से बात कर रहा है, तो जरा थोड़ा आगे से गुजर जाएं। इवन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है कि नमाज काटने वाले को, यानी कि नमाजी के सामने से गुजरने वाले इंसान को अगर ये पता चल जाए कि नमाज काटने का कितना बड़ा गुनाह है तो वो अगले 40 दिन तक उस जगह पर खड़ा रहे। अब इस हदीस में गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर औरत के गुजरने पर रोक नहीं लगाई गई, बल्कि सामने से गुजरने वाले पर रोक लगाई गई है, अब चाहे वो औरत हो या फिर वो मर्द हो। और आज भी आप दुनिया की हर मस्जिद में नमाजियों को अपने आगे सुतरा रखकर नमाज पढ़ते हुए देखेंगे। ये 1400 साल पुराना ट्रेडिशन है जो आज भी कायम है। दीन ने तो रास्ते आसान करने को कहा था, लेकिन हमने खुद ही दीन को मुश्किल बना दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने बेगम। दलील के हिसाब से अल्लाह के नबी ने नमाजी के सामने से गुजरने वाले को गुनहगार कहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत। लेकिन इल्जाम सिर्फ औरत पर लगाए जा रहे हैं। ये कैसी नासमझी है? ये नासमझी नहीं बल्कि इल्म की कमी है। जब तक हम इल्म की गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक इस तरह के मसले हमारे सामने खड़े होते रहेंगे। पादरी साहब, हदीस का सब्जेक्ट कभी औरतें थी ही नहीं,
बल्कि हदीस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस बारे में बात करता है कि असल में नमाज में फोकस को कैसे मेंटेन किया जाए। और उसका सॉल्यूशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया कि भाई सुतरा का इस्तेमाल करो, अपने आगे सुतरा को रखो। और जब इस बात का गलत मतलब निकाला जाने लगा, लोग इस हदीस को गलत कॉन्टेक्स्ट में लेने लगे, तो सबसे पहले एतराज करने वाली कोई मर्द नहीं थे, बल्कि एक औरत थी, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। और कमाल की एक हैरान करने वाली बात कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे ज्यादा सवाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायतों पर उठाए हैं। दोनों के बीच खुला इल्मी इख्तलाफ था जो सालों तक चलता रहा। लेकिन जब 58 हिजरी में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ, तब आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए सबसे आगे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा ही सामने आए। यानी इस हदीस में औरत को कुत्ते के साथ कंपेयर नहीं किया गया, बल्कि इबादत में फोकस बनाए रखने के लिए सुतरा के इस्तेमाल का हुक्म दिया गया है। बिल्कुल पादरी साहब, आपकी दलील ने मुझे काफी हद तक सेटिस्फाई किया है, लेकिन फिर भी इस्लाम में हमें कोई महिला स्कॉलर नजर नहीं आती। सारे बयान, सारे मौलाना और ज्यादातर हदीसें बयान करने वाले भी मर्द ही दिखाई देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस्लाम मर्दों का मजहब है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप किसी एक फीमेल स्कॉलर का नाम बता सकते हैं? यहाँ फंस गया सीएम। व्हाट? कुछ नहीं, नथिंग। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक फीमेल स्कॉलर का नाम, मिस्टर मकतूब। एक नहीं, मैं आपको 10,000 नाम बता सकता हूँ पादरी साहब। बात है 1990s के ऑक्सफोर्ड की। डॉक्टर मोहम्मद अकरम नदवी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। वो ढूंढना चाहते थे कि इस्लामिक हिस्ट्री में कितनी औरतें हैं जो हदीस की स्कॉलर हैं, इस्लाम की स्कॉलर हैं। डॉक्टर मोहम्मद अकरम नदवी को लगा कि शायद 20-30 औरतें मिल जाएंगी और एक छोटा सा बुकलेट बन जाएगा। लेकिन जब आपने रिसर्च करना शुरू किया तो आप हैरान रह गए कि किताबें लिखते 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 43 वॉल्यूम भर गए और इन 43 वॉल्यूम्स में 10,000 फीमेल स्कॉलर्स की जिंदगी को वर्ड बाय वर्ड दर्ज किया गया। और इन किताबों में सबसे पहली स्कॉलर का नाम वही है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। आपके भांजे उर्वा बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने फिक्र में, मेडिसिन में और शायरी में आयशा से बड़ा कोई आलिम नहीं देखा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ हदीसों की ही एक्सपर्ट नहीं थी, बल्कि आपको हजारों अरबिक पोइट्री ज़बानी याद थी। इसके अलावा इस्लाम के अंदर आपको एक बहुत जबरदस्त क्रिटिक के तौर पर भी देखा गया है। बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े आलिम जब किसी हदीस पर फंस जाते या किसी इस्लामी कानून के मामले में फंस जाते तो लोग एक दूसरे को राय देते कि जाओ जाकर आयशा से इस मसले के बारे में पूछो। आयशा की चौखट पर सारे इल्म के दरवाजे खुले हुए हैं। अब्दुल्ला, अल्लाह के नबी ने हमें ज़कात का हुक्म तो दे दिया है, लेकिन मुझे ये बात सही तरह समझ नहीं आई। साद, तुम्हें हजरत आयशा के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। हजरत अबू मूसा अशारी फरमाते हैं, जब भी हमें कोई हदीस समझने में मुश्किल पेश आती तो हम हजरत आयशा की तरफ रुजू करते। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। मैं अभी हजरत आयशा के पास जाता हूँ। पादरी साहब, वैसे तो इन किताबों में 10,000 स्कॉलर्स के नाम मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको कुछ गिने चुने नाम ही बताऊंगा, जैसे उम्मु दर्दा जो डेमेस्कस की मस्जिदों में हदीस और फिक्र की क्लास लेती थी, और आपके स्टूडेंट्स में उम्मय्यद डायनेस्टी के 5वें खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान भी मौजूद थे। यानी एक औरत अपने वक्त के सबसे ताकतवर हुक्मरान को पढ़ाती थी। और जब हम इस किताब के पन्ने पलटते हैं तो हमें 11वीं सदी की आलिमा करीमा अल मरवाजिया का नाम भी मिलता है। वो स्कॉलर जिन्हें सही बुखारी की हदीसों का एक्सपर्ट माना जाता है। इनके जमाने में ये बात मशहूर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही बुखारी का इल्म कहाँ से हासिल करूं। प्यारे बेटे, बुखारी पढ़नी है तो मक्का जाओ करीमा के पास। इमाम बुखारी की किताबों जैसी महारत किसी और के पास नहीं। यही नहीं, डॉक्टर नदवी की किताबों में और भी नाम मेंशन हैं, जैसे फातिमा अल फहरी। साल 859 में इस लेडी ने अपने अब्बा की पूरी विरासत खर्च करके फैज में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा किया, अल क़रवैन। यूनेस्को और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया की सबसे ज्यादा पुरानी और कॉन्टिन्यूसली चलने वाली यूनिवर्सिटीज में से एक है। यानी ऑक्सफोर्ड से पहले, कैम्ब्रिज से पहले दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाला कोई मर्द नहीं है, बल्कि एक औरत है। ये दर्जा है औरत का पादरी साहब इस्लाम में। मेरा ख्याल है
کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. ڈاکٹر ندوی کی کتابیں میں نے آپ کے چیمبر میں رکھوا دی ہیں, وقت ملے تو پڑھ لیجیے گا اسلام کو اور بہتر سمجھنے کے لیے. اللہ حافظ. प्लीज सब लोग इधर ध्यान दीजिए. इट्स प्रेयर टाइम. पादरी साहब को तो जवाब दे दिया, लेकिन अगर अगली बार कोई आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाए और आपको व्हाट्सएप पर झूठी हदीस भेजे या फिर आप यूट्यूब पर ऐसे तमनील दे के इस्लाम एक्सपोज, तो अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए. सबसे पहले सवाल, ये हदीस कितने ऑथेंटिक है? दूसरा सवाल, ये किसी ने कहा गया है? तीसरा सवाल, इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट क्या है? मेरा मकसद ये है कि लोग ज़रा समझे, ठहरे और ये महसूस करें कि इस्लाम में औरत को कितने इम्पोर्टेंस दी गई है और औरत की तालीम को कितना अहमियत दी गई है.